Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So there are some new subscribers on the channel and there are some older subscribers. So the older subscribers are aware about the basic ground rules of optimum utilization of mock test. But the new users might have missed those videos and then they are confused. So in this video, I am giving you ground rules for attempting mock test for optimum utilization and benefit. If you are attempting mains mock test, maybe any exam, you must keep a gap of 3 days between one mains mock test to another mains mock test. That means if you are attempting a mock test on Monday, then the next 3 days and Monday remaining period should be utilized for studying the weak areas that is identified by the mock test. And then you should attempt the second mock test on the 4th day. As far as prim level mock tests are concerned, they should be attempted on alternate day basis, not on daily basis. The mock test of prim should be attempting on alternate day basis, meaning whereby if you have attempted one mock test in morning, identified your weak points, then the rest of the day you will be utilized for study in weak points and next day will be utilized fully for studying the weak points. Then comes when you come very near to the examination. Say only 10 days are left for an exam. Then the frequency of attempting mock test will be raised. For pre-level, we will make it daily. Some days we can even do 2 mock tests a day. That will be when we are very close to the examination. Say only 10 days are left. For practice purpose, we will raise our frequency. When we are preparing 2 months before, 3 months before, laying the foundation of our study, then you have to keep higher gap. This is clear now? Because some people are confused. In one of the video I told you should start day with the mock test. Does not mean daily you have to attempt the mock test. Once I say start the day with mock test means if you have to attempt the mock test on a given date, that mock test must be done in the morning. That is the purpose of telling that. Because some people are listening partial things. They are not able to club the things that is already covered in videos and that's why they are confused. So I am making this master video for the purpose of how we can take maximum benefit out of mock tests. I am making very clear. In mains, there should be minimum gap of 3 days. For prim, it should be alternate day. Only when we are very near to examination, we will raise the frequency. Okay? And I have suggested you an excellent mock test. Link is available in description and comment. Click the link, take half yearly and yearly plan, even if you are having any other mock test. And the moment you will use this mock test, you are bound to compliment me. Thousands of people are complimenting me day and out for suggesting such a good source for preparation. If you have not utilized this opportunity, utilize it today. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. काफ़ी लोग कंफ्यूज्ड हैं मॉक टेस्ट का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन को लेके. ऑल्दो जो पुराने लोग हैं जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं उसमें ये मैंने बात बार बार आपको क्लियर की है. कुछ लोग नए हैं, कुछ लोगों ने शायद वो वीडियोस नहीं देखी है, इसलिए उनके जहन में कंफ्यूजन रहता है. तो यहाँ मैं कुछ ग्राउंड रूल्स इस वीडियो में बता दूंगा ताकि जिसको भी कंफ्यूजन होगा हम इस वीडियो को फिर रेफर कर पाएंगे. पहली चीज है, अगर हम मेन का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं किसी भी एग्जाम का, तो एक मॉक टेस्ट और दूसरे मॉक टेस्ट के बीच कम से कम 3 दिन का गैप होना चाहिए. मान लीजिए मंडे आपने मेंस का मॉक टेस्ट किया, अपनी कमियां ढूंढी क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है उसके अंदर.
तो वो दिन जो बचा हुआ टाइम है और अगले 3 दिन आप उन विषयों पर लगाएंगे जो आपके कमज़ोर विषय हैं, जहां पर आपको फोकस करना है। फिर चौथे दिन जाके आपका नंबर आएगा जब आप दूसरा मॉक टेस्ट मेन का अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, अगर एक से अधिक मेंस आपके लाइंड अप है तो आप किसी एक एग्ज़ाम को फोकस करके ये करेंगे। ये नहीं कि सभी एग्ज़ाम के मेन देने लग जाएं आप, नहीं। क्लियर हो गया। इसके बाद है प्री का। प्री में मैंने आपको बार बार बताया है कि हमें अल्टरनेट डे पे मॉक टेस्ट देना चाहिए, डेली नहीं देना चाहिए। मान लीजिए आपने मंडे को मॉक टेस्ट दिया है प्री का, तो वेडनेसडे को आप दूसरा प्री का मॉक टेस्ट देंगे और मंडे का जो बचा हुआ टाइम है और ट्यूसडे का टाइम है वो आप उन विषयों पे लगाएंगे जो आपके कमज़ोर एरिया। इसके बाद क्या होता है, अब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ गया, मान लीजिए सिर्फ 10 दिन बचे हैं एग्ज़ाम को या 15 दिन बचे हैं, तो हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉक टेस्ट बढ़ाना है प्रैक्टिस के लिए। जब हम रेगुलर स्टडी कर रहे हैं, मीन्स अब से 2 महीने बाद कोई एग्ज़ाम है, कोई 3 महीने बाद एग्ज़ाम है, तो हमें जो अभी मैंने बताया आपको 3 दिन का गैप और अल्टरनेट डे मेथड वो इस्तेमाल करना है। जैसे जैसे हम एग्ज़ाम के नज़दीक पहुंचेंगे तो हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है, क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब हमारी तैयारी हो चुकी है, अब हमें प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर आप डेली भी मॉक टेस्ट कर सकते हैं और एक से अधिक भी मॉक टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब कई लोग कंफ्यूज हैं। एक मैंने वीडियो डाली जिसमें मैंने कहा कि दिन की शुरुआत आपको मॉक टेस्ट से करनी है, तो कई लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा है कि सर पढ़ाई कब करेंगे। देखो, मैंने ये कहा है कि जिस दिन आपको मॉक टेस्ट करना है, क्योंकि अब मेंस में 3 दिन में एक बार करना है, तो जिस दिन आपको मॉक टेस्ट करना है उस दिन थके हुए दिमाग से नहीं करना है, मॉर्निंग में करना है। ये मैंने बताया। ये नहीं मैंने उसका मतलब है कि रोज करना है, ये गलत मत समझिए उसको। आप रोज करने से कोई फायदा नहीं होगा आपको। मान लीजिए आज मेरा दिन है जिस दिन मुझे मेंस का मॉक करना है, तो अगर मैं शाम को कर रहा हूं तो कोई फायदा नहीं होगा उसका। अगर मैं सुबह उसको करूंगा तो मुझे फायदा होगा। ये उसका कहने का अभिप्राय है। जब तक आप दोनों कंसेप्ट्स को साथ लेके नहीं चलेंगे आपको बात समझ नहीं आएगी, और जब वो बात समझ नहीं आएगी तो आप गलत इंप्लीमेंट कर दोगे। डेली मॉक टेस्ट करने के लिए उस वीडियो में मैंने नहीं बताया। मैंने ये बताया कि दिन की शुरुआत कैसे होनी चाहिए। अगर आज हमारा मॉक टेस्ट डे है तो मॉक टेस्ट पहले होगा, फिर इंग्लिश होगा, फिर क्वांट होगा, फिर रीजनिंग होगा, फिर करंट अफेयर करना है। जिस दिन हमें मॉक टेस्ट नहीं करना है उस दिन आप दिन की शुरुआत इंग्लिश से कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई। मेरा ख्याल कोई कंफ्यूजन नहीं रहा, बिल्कुल क्लियर शब्दों में मैंने बता दिया। अब जब मल्टीपल एग्जाम होते हैं तब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको एक टाइम के अंदर एक एग्जाम को फोकस करना पड़ेगा। मान लो 3 एग्जाम मेरे लाइंड अप है मेन के, तो या तो मुझे ये डिसाइड करना है कि एक वीक में मैं किस एग्जाम को फोकस करूंगा, दूसरे वीक में किस को फोकस करूंगा, तभी तो तैयारी होगी ना। ऐसे अगर कंफ्यूज रहूंगा तो तैयारी नहीं होगी। बेहतरीन मॉक टेस्ट मैंने आपको सजेस्ट किया है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिया है, इसको ले लीजिए आप। आपके पास जो मर्जी मॉक टेस्ट है, इस लिंक को क्लिक करें और रजिस्टर करें और आप हाफ ईयरली प्लान ले लें। ये मास्टर वीडियो मैंने इसलिए बना दिया ताकि जिसको भी कंफ्यूजन होगा हम ये लिंक दे देंगे, वो समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि जो लोग एक दूसरे वीडियो को लिंक मिला के नहीं देखते हैं उनको दिक्कत आती है। अभी भी मैं कमेंट देख रहा हूँ, कई लोगों को बात समझ नहीं आई जो मैंने बात बताई है, इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में कोई भी शक शुबा ना रहे, और जब आप क्लियर होंगे माइंड में तभी आप तैयारी कर पाएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।